Okay. Yes. Good evening, students. So, in today's lecture, what we have to do, we have to just see the some basic characteristic or some property of phonons, and then we will solve some questions regarding the lattice vibration, and after that, we will solve the test paper, right? As I said in the message, then today's class, after the completion of lattice vibration chapter, we are going to solve the test paper. Okay. Have everyone attended the paper? सभी ने attempt कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. So let's start our discussion. There are some only few points are there which we have to see regarding the phonons. Okay. See, phonons, as I already told you, what is phonon? Basically it is a quanta of elastic wave. Okay. Quanta of elastic wave, like photon. Photon is what? Quanta of electromagnetic wave. Similarly, phonon is a quanta of elastic wave. So just we have to see the some properties of the phonons. So I just want to tell you one thing. This line said sufficiently enough that phonons is analogous to photons. Phonons is analogous to photons. Means the property exhibited by the photons will similarly followed by the phonons. Okay, ये एक दूसरे का क्या होता है? Analogous होता है. Just like if you talk about the energy of phonons. Energy of phonons. So energy, photon की energy क्या होती है? What is the energy of photons? Is h cut omega? Energy of photon is h cut omega. All right. Yes, sir. Similarly, the energy of phonons will also be h cut omega. Analogous means most of the property, or you can say almost all the property, will exhibited by the phonon itself. Okay. Similarly, photon follow the de Broglie hypothesis. Okay. What is de Broglie hypothesis? That is lambda is equal to h upon p. Okay. P for photons. Similarly, the phonon will also follow the de Broglie hypothesis. That is lambda is equal to h upon p. That is momentum of phonons. यहाँ भी ये सेम होगा. ठीक है. और क्या प्रॉपर्टी होती है फोटॉन्स की? कैन आई इवन टेल व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स? पार्टिकल ये कैसा होता है? फोटॉन्स आर Sir, bosons. bosons. Photons are bosons. Therefore, the phonons is also a bosons. Phonons भी क्या होते हैं? Bosons ही होते हैं. एक मिनट. Phonons are bosons. They are bosons means what are the basic property? It will follow the Bose-Einstein characteristics. Okay, it will follow the, you can write here, phonons will follow the Bose-Einstein statistics. दिख रहा है? Okay. BE statistics. BE statistics means ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा थर्मल स्टैटिस्टिक्स में, मींस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. ओके, बेसिकली क्या है Bose-Einstein statistics? So what are the distribution function for the BE statistics? क्या होता है distribution function? -1. -1. What is beta here? 1 upon KBT.
All right. So you can also write 1 upon e to the power e by kBt minus 1. That means the phonons will follow this type of Fermi distribution. Okay. Or you can say the distribution for the Bose-Einstein statistics. All right. There's one more property which photons occur regarding the chemical potential. Chemical potential photon का कितना होता है? Mu. कितना होता है photons का chemical potential? Zero. Then similarly, the chemical potential of bosons is also zero. देखो, sorry, bosons नहीं, phonons. The chemical potential of the phonons is also zero. See, इस पूरे लेक्चर से ना इन सब चीजों से क्वेश्चन आपको नेट में नहीं मिलेगा. यू कैन गेट अ क्वेश्चन द गेट एग्जाम. आप गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. वन लाइनर लाइक व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ बोसॉन्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में मिलने के चांसेस बहुत कम है, बट यू कैन गेट इन द गेट एग्जाम्स एक्चुअली. ऑलराइट, सो म्यू जीरो फॉर द phonons. Okay, and one more thing I want to tell you, that as you see in the photons case, that there is a lot of experiment which suggests that yes, there is a photons. What are that experiment? Photoelectric effect, ठीक है ना, Compton effect, ठीक है. ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो बताते हैं, this suggests that there is a photons है, but there is not any specific experiment which can suggest that there is a bosons, sorry, phonons. मैं बार बार फोनॉन्स को बोसॉन्स बोल दे रहा हूँ. ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो ये बोल सके कि यस देयर इज अ फोनॉन्स, बट वी कैन forcefully say this, yes, the phonons exist in nature, and the theory is of specific heat at T is equal to 0 Kelvin, which is our next chapter, thermal properties. वो एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताती है कि नहीं, फोनॉन्स होते हैं. T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जब हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करते हैं, और वो हमारे इसी कॉन्सेप्ट से आता है, देन ये चीज हम कह सकते हैं कि यस, फोनॉन्स आर एग्जिस्ट बेसिकली इन नेचर. क्लियर है? सो दीज वर द सम, you can say, some properties regarding the phonons. And what is the phonon? Basically this is the elastic wave, quanta of elastic wave. ठीक है, so these were the all about from this chapter. Now we are going to solve some questions which I have sent you. Please see everyone the WhatsApp message I have sent you right now. There's a 4 question. मिला सबको? Yes, sir. Everyone got that? Okay. So let's try it one by one. Let's see first GATE 2011 question. For a 3-dimensional crystal having n primitive unit cell with a basis of p atoms, the number of optical branches. बताओ कितना होगा आंसर इसका? I told you na that this type of question frequently asked in the exam. 3p minus 3. So for 2D, there were 2 if there are a number of atoms, so 1 atom per basis, right? This time there are 3, so No, you are basically seeing question number 5, right, which came in GATE 2011. आप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? हाँ 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 हाँ, नहीं ऊपर वाला देखो. फॉर अ 3-dimensional crystal having n primitive unit cell, number of having n atom in primitive unit cell with a basis of p atoms. Okay, number of atoms is p, not n. Number of atoms कितना है? Number of atoms is p, and it is clearly given the crystal is what? 3-dimensional. Crystal is
3-dimensional. And they are asking for the number of optical branches. Number of optical branch. I told you, na, if there are n atoms, 3p minus 3. yes, exactly. If there are capital N atoms, कितने atom है अगर? Capital N atoms हैं, and the crystal is 3 dimension, then total number of modes will be how much? कितने होंगे? Total number of modes कितने होंगे? Total number of modes. 3p. In this case, this will be 3n. है ना? There will be 3n. Yes, sir. In this case, it will be 3n. And among the 3n, number of optical branches कितने होंगे? Number of optical branches. Number of optical branches is 3n minus 3. Right? And number of acoustic branches? कितना था? 3. Number of acoustic branches is 3. Right? ये हमने पढ़ा था last class में. So in this case, the number of atom is P and the crystal is 3D, then the number of optical branch. What should be the number? 3p minus 3. 3p minus 3. Simple. This is your answer. So option C is correct, right? Option C is correct. ठीक है? Direct question. Theory से. Now, just look at the question second. That is question number 6. GATE 2020. GATE 2020. Consider a two-dimensional crystal with 3 atoms in the basis. 3 atom in a basis, number of allowed optical branch and acoustic branch due to the lattice vibration. Please solve, everyone. Sir, optical 4 and acoustic 2. Yes, exactly. Bilkul. Number of atom is? What is the value of n here? 3? 3. Yes, sir. है ना? And the crystal is 2-dimensional. Crystal is 2-dimension. So, what should be the total number of means branches or total number of modes? 2n. 2n. 2n minus 2. Okay, that is total modes will be 2n. 2n means what? 6. 6. All right. Total will be 6. Yes, sir. Sorry, there was some disturbance. Okay, so total modes is 2n, that is 6. And number of optical modes? So number of optical modes. Number of optical modes will be 6 minus 2. 6 minus 2, that is 2n minus 2. Yes. 2n minus 2.
and it will be what? 2 C is 6 minus 2, that is 4. And as I told you, for the acoustic branch, what will be the dimension? Whatever be the dimension of the crystal, that number of branches will be in acoustic branch. Okay, so हमें किसके लिए पूछा गया? ऑप्टिकल ब्रांच 4 होगा, मतलब ऑप्टिकल मोड जो है 4 होगा, एंड नंबर ऑफ acoustic मोड कितना हो जाएगा? 2. 2. Should be 2. Okay, number of acoustic mode should be 2. वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी आई गेस, और सी? C. ए ऑप्शन है सर, 2 और 4 ये 4 and 2, राइट? 4 and सर. 2. एन एन एम का ऑटोमेटिक ना है ना. हाँ तो ऑप्टिकल एन पहले. एन ऑप्टिकल है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना. यस सर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आपसे कहा था ना, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पॉइंट से. सो ये तो आपको समझ लो एकदम ध्यान में होना ही चाहिए. यू कांट वेस्ट more than 30 seconds if this type of question has been asked in the question in the paper. ठीक है ना? All right, let's try next question. What is the question? The phonon dispersion for the following one dimensional diatomic lattice M1 and M2. All right, so omega square, the dispersion relation which we have given, and we have to find the velocity of what? Wave. हमें वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. प्लीज सॉल्व एवरीवन. बहुत ही एक्चुअली हमने ये डिराइव भी कर रखा है. प्लीज सॉल्व करो जल्दी से. प्लीज सॉल्व एवरीवन. वी हैव सॉल्व्ड इट, वी हैव डिराइव्ड एक्चुअली. सर वो साउंड वेव वाला ना. हाँ एग्जैक्टली. देखो कैसे सोचेंगे कि मींस हमें यहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट यूज करनी है. ठीक है ना भाई? बेसिकली वी हैव टू यूज अ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट हियर. एंड हाउ वी कैन से दैट वी हैव टू यूज द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट? कैन एनीवन से? कैसे हम ये पता लगाएंगे कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट हमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में? क्या ऐसा दिया हुआ है? साउंड वेव. एग्जैक्टली, द साउंड वेव गिवन इन अ क्वेश्चन. वहां से देखो, he has not said directly in the question that in the long wavelength range limit what should be the velocity of sound wave. He has ने ऐसा नहीं कहा है, but he has just asked the what should be the velocity of sound wave. तो जैसे ही साउंड वेव उसने बोला है ना, आपको समझ जाना है साउंड वेव कहाँ आती है. k is equal to और k tending to 0 के केस में आती है ना. ऑल राइट, दैट मीन्स अ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में आती है. प्लीज सॉल्व एवरीवन. देखो कितना आ रहा है. एक्चुअली वी हैव सॉल्व दिस, हमने ये डिराइव भी कर रखा है. डायटोमिक लैटिस की जो क्लास हुई थी पहली क्लास, उसके एंड में हमने डिराइव कर रखा है ना. प्लीज सॉल्व एवरीवन. देखो कितना आ रहा है. सॉल्व कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. चलो कोई नहीं, टेक योर टाइम, नो इशू. आज हमारा पूरा क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग पर ही बेस है. ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में पूछा है, k इज इक्वल टू 0 मत कर देना. k टेंडिंग टू 0 होगा यहाँ पे. ओके, k विल टेंडिंग टू 0, दैट मींस साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. ठीक है ना? साइन अगर आप 0 ही कर दोगे तो डिस्पर्जन रिलेशन ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे. What we have derived, there is some notation difference in this dispersion relation. What we have taken as beta, the spring constant, that beta is given as capital K here, right? And the K which we have taken in our derivation, it is given as small q here.
ऑलराइट, तो कंफ्यूज मत होना, नोटेशन वो कुछ भी दे सकता है। देखो क्या आ रहा है वैल्यू। सर ऑप्शन आ रहा है डी। डी? यस सर। नहीं नहीं, डी तो नहीं आएगा। द ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्चुअली। सर ओमेगा माइनस हाँ लेना सर पड़ेगा। सॉरी? सर यहाँ ओमेगा माइनस लेना पड़ेगा। ओमेगा माइनस, हाँ एकॉस्टिक ब्रांच की बात कर रहा है ना, यस सर। एकॉस्टिक ब्रांच की बात कर रहा है ना ये। जिसका डी आ रहा है प्लीज एक बार आप देखो कहाँ आपने मिस्टेक किया है। ऑप्शन हाँ बी। सर बी बी आ रहा है सर, वो M1 M2 कट जा रहा है नीचे से ऊपर। यस एग्जैक्टली, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अपनी कॉपी में देखना, आप सब लोग अपने नोटबुक में देखना, वी हैव डिराइव दिस रिलेशन एक्चुअली, वी हैव डिराइव दिस कंप्लीटली। बाइनोमियल लेके जो हमने किया था ना, याद है आपको? बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, यस सर। वही वाला है ये। यस डिस्पर्सन रिलेशन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यस, 2 का भी फैक्टर आएगा, 2। हाँ सर डिवाइडेड बाय। ऑलराइट, यू हैव 1 मिनट मोर, प्लीज ट्राई। हो गया सबका? आगे बढ़े? Yes, sir. All right. So the option B is correct. Okay. Now let's try next question. That is net December 2018. Net December 2018. क्वेश्चन पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बैरियम टाइटेनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना? और इसका सर स्ट्रक्चर, 12 सर। हाँ ठीक है, 12 इज द करेक्ट आंसर। प्लीज सॉल्व एवरीवन, सब लोग सॉल्व करो इसको। बैरियम टाइटेनेट की बात कर रहा है ये, ठीक है ना? एंड द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ओके, बैरियम देखो साफ साफ उसने कहा है, ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है इसमें। क्रिस्टल हैज अ क्यूबिक peroxide स्ट्रक्चर, चलो ठीक है। वेयर द Ba2+ आयन एट द वर्टिसेस ऑफ यूनिट सेल क्यूब। Ba2+ कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। ऑलराइट, दैट मींस दीज ऑल द कॉर्नर्स, इन सारे कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है? Ba2+। ऑलराइट, कॉर्नर्स Ba2+ एट कॉर्नर्स, ठीक है ना? तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ Ba2+? इफेक्टिव नंबर की मैं कॉर्नर बात पे कर तो रहा हूँ। 1/8। 1. Okay, that is 8 into 1/8 equal to 1. All right, this is a barium Ba2+. And again they are saying the O2 minus ions at the center of faces. जो फेस के सेंटर हैं इन पे O2 minus ion रखा हुआ है। The O2 minus ion kept here. There are 6 faces. Okay, O2 minus at face centered. इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3। 6 into 1/2, 3. that should be 3. And Ti2+ is at the center. Ti2+ कहाँ रखा हुआ है? ये एक बड़ा सा Ti2+ है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे। ऑलराइट, दिस इज अवर Ti2+।
ऑलराइट, सो व्हाट शुड बी, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1, पूरा का पूरा 1. कंट्रीब्यूशन आएगा। व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव नंबर? 5। 5. ठीक है ना? जो मैंने आपको लाइन लिखाई थी, अब ध्यान से पढ़ना। जो कैपिटल एन था, व्हाट वाज द कैपिटल एन? प्रिमिटिव नंबर। लिखा हुआ है, सब लोग देखो अपनी कॉपी में, प्रिमिटिव लिखा हुआ है। Yes, sir. ऑल राइट, तो Yes, sir. जब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया था बेरियम टाइटेनेट का, then what you have to do, just you have to take first the effective number of atoms. सारे एटम नहीं काउंट कर लेने हैं कि 4 यहाँ 4 यहाँ 8 6 ये 14 ये 15, नो, इफेक्टिव नंबर, प्रिमिटिव यूनिट सेल को काउंटर करना, राइट? सो व्हेन वी सॉल्व फॉर द प्रिमिटिव यूनिट सेल 1 3 4 और 1 5, effective number of atom is 5. That is according to our theory. What is capital N here? Capital N is 5. And peroxide structure, that means a 3-dimensional structure, obviously cube बोला ही हुआ है, that means 3D structure है. What should be the total number of modes? Total number of modes. PM. Total number of modes should be what? 3n. 3n, okay? 3n, that is 15. 15 total modes होंगे, obviously. उनमें से ऑप्टिकल ब्रांच के कितने होंगे? 3n minus 3. And for the acoustic, 3. Okay. So for the optical branch, I'm writing here number of modes or optical modes in optical branch. This will be 3n minus 3, that is 12. So 12 is the correct answer. ठीक है? So कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे. They can ask in a different way, like they have asked in this question. They have given the peroxide structure. उससे आपका मतलब नहीं है कि peroxide structure क्या होता है, ठीक है ना? कि स्ट्रक्चर में कोई बेसिकली कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए उसने साफ साफ लिख दिया है सब कुछ. दे हैव रिटन ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली दैट बेरियम Ba2+ इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, फेस पे ये है, सेंटर पे ये है. आपका काम आसान कर दिया. सर हाँ, सर एक चीज़ पूछनी थी. जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं वी से द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट बेसिस, राइट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट बेसिस. सो सर अगर सपोज दिस स्ट्रक्चर जो हम लोग को दे रखा है ये FCC होता, जस्ट इन केस, नॉट अ सिंपल क्यूब, तो हम लोग जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं पर बेसिस वो हम लोग 4 पॉइंट्स लेते, एंड देन इन दैट केस हम लोग को डिवाइड करना पड़ता ना, जस्ट इन केस. नहीं नहीं, FCC कैसे? FCC तो इसमें इंक्लूड है ना, देखो FCC ही तो दिया हुआ है ये. हाँ सर. सर हाँ. मैं जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लैटिस पर यूनिट बेसिस पॉइंट्स की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था सर मुझे कि. मैं बता रहा हूँ, आप क्या याद रखो, आप क्या समझो, आप सिर्फ इतनी सी बात समझो, इफेक्टिव नंबर्स आपको निकालने, दैट्स इट. ओके सर, इन एनी यूनिट सर. इफेक्टिव. ओके सर. जी सर. ठीक है ना? यस बस सर. सीधी सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. So this was all about in this chapter, all right? And the chapter is over. From tomorrow onwards, we will start our next chapter, that is thermal properties of solid. But for time being, means for today, I am going to discuss the question paper or test paper of the crystallography. Okay, there was few student who was facing problem while solving this, so that's why I have choose to solve this paper. All right. So do everyone have paper? सबके पास पेपर है सॉफ्ट कॉपी में? सबके पास पेपर है या मैं सेंड करूं? सर भेज दीजिए. ओके ओके, आई एम सेंडिंग, प्लीज वेट अ मिनट. Send कर दीजिए. या श्योर श्योर श्योर. आई हैव सेंड यू. देखो, जो सॉलिड स्टेट के टेस्ट होंगे ना, वो ऐसे ही होंगे जैसे मैंने अभी कराया है.
ऑलराइट, आप टाइम पर दोगे तो आपका मेरिट में नाम हो सकता है, अगर आप टाइम पर नहीं दोगे, ठीक है ना। टाइम पर मीन्स जैसे मान लो 12 बजे शेड्यूल है पेपर, इन आफ्टरनून 12 PM। आई नो यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, सो यू हैव द विंडो ऑफ कंप्लीट 1 डे। आपको रात तक वो टेस्ट पेपर देना ही होगा, ऑलराइट। अगर नेक्स्ट डे आप दोगे तो शायद तब तक मैं उसकी आंसर की सेंड कर चुका होऊंगा, है ना। अब देखो, क्योंकि रीजन इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ 2 सेट ऑफ पेपर, 1 फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, 1 फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, ठीक है ना। सो इसीलिए पेपर एक साथ होगा, एक दिन का पूरा विंडो आपको दिया जाएगा कि आप पूरा वो पेपर एक दिन के अंदर सॉल्व कर लो, मीन्स मिडनाइट तक आप सॉल्व करके सबमिट कर दो, और नेक्स्ट डे इवनिंग तक उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज देयर वॉज फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड द वेरी लेट, और देयर वॉज फ्यू स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड मैनी टाइम्स, 1 time 2 time 3 times, so all they were out of this merit list, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार मैंने आंसर की सेंड कर दी तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है ना। सो प्लीज आप लोग उसको टाइम पर अटेम्प्ट करना, टाइम पर मीन्स एक दिन के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मैं 1 by 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन FCC क्यूबिक लैटिस? सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, चलो बताओ, आप लोग को बोलना पड़ेगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है FCC में? ए ए। सेकंड नियरेस्ट नेबर A. डिस्टेंस, yes, in FCC is equal to A, and A is given as a lattice parameter, so the answer will be what? 2 centimeter. Answer is 2 centimeter, option A is correct. ठीक है। Next question. The ratio of third nearest neighbor distance and the unit cell parameter in hexagonal closed pack structure, what should be the answer? over root under 8/3. Yes, exactly. थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज हेक्सागोनल, क्या होता है? थर्ड नियरेस्ट C. नेबर डिस्टेंस इज सी होता है ना। Yes, sir. एंड Yes, sir. रेशियो किसका पूछा है? सी अपॉन लैटिस पैरामीटर ए, दैट इज अंडर रूट 8/3, दैट इज 1.63। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सबका आया था ये? किसी को है इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3, what they are saying, the packing fraction of a 2-dimensional square unit cell, that's it. Let's suppose this is disk, एक डिस्क मान लो, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल कोई डिस्क है ये, ठीक है। और एक डिस्क पूरा इस यूनिट सेल स्क्वायर लैटिस के अंदर रखा हुआ है, एंड देयर इज अ 4 अदर डिस्क विच आर कनेक्टेड एट द कॉर्नर, और ये कुछ ऐसे कनेक्ट हैं कि ये इनको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है ना। टच कर रहे हैं ना, यस, ये इनको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। 2 3 एंड सिमिलरली 4, आप बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये इसको टच कर रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस यूनिट सेल। चलो बताओ, व्हाट शुड बी द पैकिंग फ्रैक्शन? कैसे निकालते थे पैकिंग फ्रैक्शन? सबसे पहले इफेक्टिव नंबर And effective into मल्टीप्लाई area of, बाय एरिया ऑफ वन डिस्क, yes sir, divided by total area of yes, lattice. एरिया ऑफ वन डिस्क एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, दैट इज स्क्वायर लैटिस। चलो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। व्हाट शुड बी द एन इफेक्टिव? 2. सब लोग एग्री हो? 2 कैसे आ रहा है? कहीं भी प्रॉब्लम होगी प्लीज बोल देना। एन इफेक्टिव देखो, द कॉर्नर डिस्क विल बी शेयर बाय हाउ मेनी स्क्वायर? कितने स्क्वायर के साथ ये शेयर होगा? 4. 4 के साथ। देखो मैं दिखा भी देता हूं ये कैसे 4 के साथ होगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। कितने के साथ शेयर हुआ? 4 के साथ में। दैट मीन्स
How many discs are at the corner? 4, and one is sharing by 4, that is 4 into 1 by 4, that is 1. And there's one more disk at the center which are giving the full contribution, plus 1, that is 2. So the effective number of disk is 2, and effective value कितनी हो गई? 2 हो गई. Let's suppose the radius of the disk is small r, so the what should be the area of disk? pi r square. Pi r square. ठीक है ना? It should be pi r square. All right? It should be pi r square. तो दो चीजें तो हमें मिल गई. Now we have to find the area of square lattice. Obviously it should, अच्छा length दी हुई है ना, length is L. Length L is given. देखना है ना, length L is given. So the area of square lattice will be L square. Area of square lattice is equal to capital L square. यही होगा. Now there's a problem. Here's a pi r square and there's a L square. We have to convert r in terms of L or L in terms of r. How can we do that? डायगोनल ले लेंगे और 4. ठीक है ना. आप देखो टच कौन कर रहा है, ये तीनों एटम आपस में डायरेक्ट टच कर रहे हैं ना, तो आप इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करो. ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2L. भाई √2L होगी ना ये डिस्टेंस. Yes, sir. And if the radius of a disk is r, then what should be the means distance in terms of radius? r R. इसका आएगा, 4R. r इसका आएगा और 2r इसका आएगा, that is 4r. All right. So the value of L is comes out 4 by √2 times r. Just put the value of L there, okay, and put the value of area of disk and effective. Let's see how much the answer is coming. कितना आ रहा है? प्लीज सॉल्व करो सब लोग, देखो कितना आ रहा है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है ना, कर लोगे ना. r square will be cancel out and you will get a number. What should be the number? 78.5. Yes, exactly. The answer is 0.78. That means option D is correct. ठीक है ना, 78.5%. D option is correct. किसी को कोई डाउट है? सर जैसे आपने ये बोला ना कि हम एन इफेक्टिव निकालेंगे तो जैसे कि इसमें 4 लेटिस बनेंगे, हाँ. तो सर इसमें हमने +1 कैसे ऐड किया? अरे ये सेंटर वाला नहीं लोगे आप, पूरा पूरा डिस्क अंदर रखा हुआ है. अच्छा इसका तो फुल कंट्रीब्यूशन आएगा ना. जी सर. अरे बॉडी सेंटर याद करो, कॉर्नर्स पे रखे होते थे 8 into 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का एक सिंपल 100% कंट्रीब्यूशन के साथ एन इफेक्टिव 2 हो जाता था, वैसा ही तो है. ठीक है. जी सर. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कई लोगों ने इसमें गलती की है. कितनी बार मैंने बताया था, एंगल नॉर्मल से नहीं लेंगे, एंगल विल ऑलवेज टेकन फ्रॉम द प्लेन. And number of students have made the mistake in this question. अच्छा, कुछ लोगों ने तो पता है 2√a² + b² sin थीटा कर दिया है. I didn't understand that how they are getting a a² + b². ये कहाँ, मतलब फ्लूक, डायरेक्ट फ्लूक. ठीक है ना, देखो. सॉरी, आंसर इज सी ना, 2a cos थीटा 2a cos थीटा कुछ लैम्डा. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखो होगा कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है ना, जो भी क्लास में अटेंटिव होगा ना, उसने एक बार में देखते ही उड़ा दिया होगा इस क्वेश्चन को. This was some plane is given, okay, and this distance is given b. This distance means distance between the two lattice point is b, and this distance is given a. That is lattice interplanar spacing. Interplane. Interplanar spacing is a, and they are saying the wave is coming incident and reflected, and this is the angle theta given in the question. ये एंगल क्या है? थीटा गिवन है. ठीक है ना, बट मैंने आपको क्या बताया था डेरिवेशन के टाइम पे, दिस शुड बी द एंगल ना. ये एंगल हमें कंसीडर करना है जो कि नॉर्मल होगी, प्लेन से बनेगा, नॉर्मल से नहीं, प्लेन से. दैट मींस वी हैव टू टेक अ थीटा डैश. ओके, सो व्हाट शुड बी द एंगल थीटा डैश? 2d sin
theta No. dash is equals to lambda. Theta dash should be what? 90 minus theta. 90 minus theta. And 90 minus theta is cos theta. Cos theta. 2a cos theta is equals to lambda. That's it. This is the answer. क्या करना था इसमें? Okay. All right. Next question. मीटिंग एंड हो गई? तो सर नहीं सर। दूसरे बच्चे हैं आईटी जैम वाले। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। मैंने कहा मेरे से तो बात कर रहे हैं सब। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सच सच बताना किसने ये क्वेश्चन सही किया है? ऑफलाइन में तो किसी ने नहीं किया था। एनीवन इज देयर हु हैव करेक्टेड दिस क्वेश्चन? देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको वर्बली बता रहा हूँ, ऑलराइट, एंड आई हैव मेड अ वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई विल सेंड यू इन अ ग्रुप, ठीक है ना? वहां से आप देख लेना। देखो बेसिकली द क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है TIFR 2021 का। TIFR 2021. The picture below are intended to denote a two-dimensional lattice with primitive vectors indicated by arrows and with the unit cells shaded. Which of the following is correct? देखो स्टूडेंट का कुछ डाउट था इसमें, ऑफलाइन स्टूडेंट्स का। एक दो लोगों ने ऑनलाइन में मुझसे कंसल्ट किया इसके लिए कि सर आपने बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, फॉर द प्रिमिटिव यूनिट सेल यू हैव टू चेक फॉर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ये आपने बताया था। बट यहां पर कैसे लेंगे? हाउ विल चूज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हेयर? इसको कैसे कैसे देखेंगे? मैनी स्टूडेंट वर आस्किंग सर ये जो टच हो रहा है इसको कैसे कंसीडर करेंगे? सो द आंसर इज, देखो आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द प्रिमिटिव यूनिट सेल, सबसे पहला, सब इनइफेक्टिव को छोड़ो, किनारे करो, सबसे पहला क्या था? नंबर 1, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। यार स्पेस को स्पैन कर। स्पैन करना चाहिए। स्मॉलेस्ट को भी किनारे रखो, पहले तो भाई वो यूनिट सेल बने। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी द यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल तो बाद की बात है। ऑलराइट, ठीक है ना? और दूसरी बात, जहां तक रही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात, हाउ कैन यू फाइंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन दिस क्वेश्चन? बिकॉज in the question is not, it is not mentioned that this is a square lattice. कहीं मेंशन है? कहीं नहीं मेंशन है। कहीं किसी और तरीके के लैटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में? नहीं दी गई है। दैट मींस दे आर जस्ट टेकिंग अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट फॉर द इफेक्टिव नंबर। वो कह रहे हैं हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो। इसके बिना बताओ कौन सा बनाएगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है इंटेंडेड, ठीक है ना? वर्ड है इंटेंडेड, मतलब बनाने की कोशिश हो रही है, बनाना चाह रहे हैं इन वेक्टर से, तो कौन सा बन सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी which vectors are spanning the complete space after repeating without any void left। बताया था ये सबसे पहली कंडीशन होती है। सब भाई सबसे पहले आप यही देखोगे ना कि यूनिट सेल बन रहा है कि नहीं। एक बार बन गया तब आप देखोगे प्रिमिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, इन दिस क्वेश्चन B, C and D दे आर नॉट द यूनिट सेल एक्चुअली। आप इसको ध्यान से देखना, मैंने वीडियो सॉल्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है ना, कि B, C और D दे आर द 3 ऑप्शन विच आर नॉट स्पैनिंग द कंप्लीट लैटिस स्पेस, बट A इज स्पैनिंग। A जो है ना स्पैन कर रहा है, आप करके देखना, A प्रॉपरली स्पैन कर रहा है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन A इज करेक्ट, नॉट B, C, D। क्लियर है? आई विल सेंड जस्ट आफ्टर द क्लास, आई विल सेंड द वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, identify the correct option regarding the crystal structure and their coordination number. What should be the correct answer? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 8। गुड। डायमंड क्यूबिक का, व्हाट शुड बी डायमंड क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। 4. ये तो सबको याद होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है। थर्ड इज सोडियम क्लोराइड 8। 8। 8. HCP SCP 12। का 12। So the option A is correct, है ना? Option A is correct. Number of Bravais lattice for orthorhombic crystal?
4 4 कहाँ से कहाँ लिखाया था मैंने ये, किसी को याद है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट Exactly. The Bravais lattice, where we have discussed the Bravais lattice. हमने इस बात का डिस्कशन किया था that there are 4 Bravais lattice in the orthorhombic crystal. आप देखना जो चार्ट बना था ना, there was चार्ट, उसमें ये चीज मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 8. Choose the correct option regarding the orientation of Bravais lattice. What should be the correct answer? सर ऑप्शन बी. B कैसे, हेक्सागोनल कैसे होगा? सॉरी सर. हेक्सागोनल कैसे होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्थोरॉम्बिक ना. ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस सर. ठीक है ना. इन द ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल the lattice parameter are not equal but the alpha beta gamma are equal to 90 degree. ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था इस चीज को प्रॉपर्ली. ये उसी ब्रेवे लैटिस के कॉन्सेप्ट से है. क्वेश्चन नंबर 9. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट शुड जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इक्वल यस, टू 0. हमने इसको डिराइव भी किया था ना, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. रूट 6 है. रूट 6a एंगस्ट्रॉम. देखो कई स्टूडेंट ना जल्दबाजी में गलती कर दी है. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एटॉमिक डायमीटर एंड द स्टूडेंट हैव फाइंड द एटॉमिक रेडियस. प्लीज जल्दीबाजी मत करो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना. एक प्रॉपरली पढ़ो. इंटेंशनली मैंने डायमीटर डाला था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना. मुझे पता था स्टूडेंट गलती करेंगे. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सॉल्व करूं मैं बोर्ड पे? एनीवन सिंगल पर्सन? किसी को डाउट है मैं सॉल्व करूं बोर्ड पर? ऑल राइट, गुड. क्वेश्चन नंबर 11. 2.8 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन ए 2.8 एंगस्ट्रॉम. क्लियर है सबको? देखो किसी को भी डाउट होगा ना बोल Yes, देना. sir. किसी को भी डाउट होगा, एनी सिंगल स्टूडेंट डाउट होगा बोल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 12. The Miller indices of a plane that makes an intercept 3, 4, 5 angstrom on the coordinate axis of the orthorhombic crystal A is to B is to C is given. What should be the answer? Option B. Direct. क्या बताया था? Miller indices is equal to lattice parameter divided by the intercept. Yes, sir. ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर देना था और you have to make a what? Integers आपको बनाना था. फ्रैक्शन में आंसर नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इसको डिस्कस करते हैं. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? Yes, sir. I can't do this. ऑल राइट. चलो देखो, क्वेश्चन इज सेइंग एन XRD एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट ऑन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग FCC स्ट्रक्चर. सबसे पहले FCC के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया at room temperature. The solid undergoes a phase transformation on cooling -20 degrees Celsius and shows orthorhombic crystal. इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोरॉम्बिक crystal. Now, show the orthorhombic structure with a small decrease in unit cell length. Okay, as compared to the FCC unit cell. As a result, the 311 line of the XRD pattern corresponding to FCC system. क्वेश्चन पे क्या है ये समझ लो. क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग द 311 लाइन. एक प्लेन है 311 का, ओके 311 का प्लेन है, उसके रिगार्डिंग FCC में जितनी लाइंस मिल रही हैं क्या उतनी ही लाइन ऑर्थोरॉम्बिक में मिलेंगी? यही क्वेश्चन है. इफ इट इज यस then the option should be remain unchanged. If it is something else, let's see what happens. The plane is 311. ध्यान से समझना, प्लेन क्या है? 311 है. पहले FCC की बात करेंगे. 2D sin theta is equal to lambda. All right. D is what? Interplanar spacing. So can we write like this? Sin theta is equals to lambda upon 2D. लिख सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, sir. FCC है, तीनों लैटिस पैरामीटर इक्वल होंगे. ए को हमने बाहर ले लिया, h स्क्वायर k स्क्वायर ऊपर भेज दिया. नाउ पुट द HKL वैल्यूज गिवन 311. सो sin थीटा कितना होगा?
साइन थीटा विल बी लैम्डा अपॉन 2a इंटू अंडर रूट 3, यही होगा, यही होगा. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा यू विल गेट? वन वैल्यू. भाई यहां से थीटा की एक वैल्यू आ रही है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी. बट सर इतना अंडर रूट 11. सॉरी Yes, sir. Under root 11 I सॉरी can. अंडर रूट 11 311 अंडर रूट 11 थीटा की एक वैल्यू आएगी. ऑलराइट, थीटा गिव ओनली वन वैल्यू. चलो ये तो बात हो गई एफसीसी की. अब ऑर्थोरोम्बिक पर आते हैं. ऑन ऑर्थोरोम्बिक अगेन 2d sin theta is equal to lambda. So the sin theta will be equal to what? Lambda upon 2d. Now the value of d will be like this, h square. देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. Sin theta is equal to lambda upon 2d, that is root under h square by a square k square by b square प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर. क्या यही होगा? यही होगा ना भाई. in an orthorhombic crystal the lattice parameter are unequal. a is not equal to b, not equal to c. so आप यहां पर जैसे आपने डायरेक्ट a लिख दिया था ना, you cannot write like this. क्लियर है? सर ये ऊपर आएगा ना? हाँ ये ऊपर आएगा, 1 अपॉन होता है, ठीक है ना, ये ऊपर आएगा. इट विल बी इन द मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में होगा. h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये होगा. नाउ देखना सारा क्रक्स यहीं पर है. प्लेन इज गिवन एज 311. फॉर द 311 you will get a one value of theta. Let's suppose theta is theta 1. ये आप theta 1 फाइंड आउट कर रहे हो जब आपने 311 रखा यहाँ पे. But tell me, if you put 131, whether you will get theta 1 or is there some other angle? Some other angle. Some other angle, because ABC are not equal. ABC बराबर नहीं है, इसीलिए जब आपने 311 रखा उससे आप जो आपको जो थीटा मिला, दैट थीटा विल नॉट बी इक्वल टू फॉर 131. बात क्लियर हो रही है जिसको भी डाउट था? Yes, sir. क्लियर है? एंड सिमिलरली corresponding 311 you will get, let's suppose theta 1. when you will put 131 you will get theta 2, and similarly when you will put 113 you will get theta 3. That means the theta which you are getting in this type, FCC type, only one value of theta, here you are getting three value of theta. That means the peak, the line which you are getting here, that means let's suppose I versus 2 theta graph. Let's suppose यहाँ पर आपको सिर्फ एक ये लाइन मिल रही थी, only single line you are getting here. In orthorhombic you will get a triplet. You will get a triplet. तीन में टूट रहे हैं ना, theta 1 theta 2 theta 3 में. That means it will split into the triplet. Clear है? But sir, how can we exchange HKL? How can we? अरे बाबा, A, B, C are not equal. How you can say that 3 is just for A, B is for 1 and C is for 1? You have degeneracy आपने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में? Yes sir. तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट तो है. यहाँ पर आप चेंज भी कर लेते तो भी आपको कुछ नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो चुकी है. भाई 311 कर दो या 131 कर दो या 113 कर दो, वैल्यू आपके अंडर रूट 11 ही आनी है. बट हेयर इफ यू पुट 311, अच्छा एक काम करो, डू वन थिंग, ए बी सी की कोई वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है ना. लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंगस्ट्रॉम, वैल्यू ऑफ बी इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड वैल्यू ऑफ सी इज 3 एंगस्ट्रॉम. हमने ये वैल्यू डिफाइन कर दी है, राइट? हमने वैल्यू असाइन कर दी एबीसी की. अब देखो, नाउ जस्ट डू दिस. एक बार आप 311 रख के देखना, एक बार आप 131 रख के देखना, एक बार 113 रख के देखना, तीन अलग अलग वैल्यू आपको थीटा की मिलेगी, ठीक है ना. सो हाउ कैन यू से कि भाई एबीसी के लिए हमें 311 ही हमारे लिए है? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है.
Are you getting? ठीक है Yes, ना? sir. So this is the concept. That's why it will split into the 3. Next question, question number 14. Neutrons moving with the speed 10 to the power 3 meter per second are used to the determination of the crystal structure. Bragg's angle Option given, D, sir. interplanar spacing asking. देखो सारा खेल लैम्डा फाइंड आउट करने का है. How will you find the lambda? De Broglie hypothesis. P by mv. Lambda is equal to h upon p. That is h upon mv. Put the mass of neutron here, velocity of neutron here, find out the lambda and then find out the interplanar spacing. D. हो जाएगा? Yes, sir. 4 angstrom is correct answer. Question number 15. किसी को डाउट है? Option D, sir. Anyone? किसी को डाउट है? इसको मैंने सर क्लास में भी सॉल्व कराया ना ये क्वेश्चन तो. Yes, sir. Solved. क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व हुआ है. हाँ, ऑफलाइन में नहीं कराया था, ऑनलाइन में स्टूडेंट को कराया था. ठीक है? All right. So this was the discussion of the crystallographic test paper, and tomorrow onwards we will start our new chapter. Okay. So let's stop here. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir.